Good morning, students. Students, till now we have discussed about addition and subtraction of vectors, and today we will discuss about product of two vectors. So let's start. Students, in a similar way, as we can multiply two numbers, two functions or two matrices, we can take the product of two vectors. We can multiply two vectors also. Multiplication of vectors can be defined in two ways. First is scalar or dot product, and second is vector or cross product. And today we are going to discuss about scalar or dot product of two vectors. Now, what is dot product of two vectors? The dot product of two vectors, two non-zero vectors, vector A and vector B, is denoted by vector A dot B and is defined as vector A dot B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B cos theta. It means suppose that अगर हमारे पास दो vectors हैं, say this is our vector A and there is another vector V, and theta is the angle between vector A and vector B. Then the dot product of vector A and vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta. Clear? And here the value of theta lies between 0 and 180 डिग्री. यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री हो सकती है. क्लियर? एंड if any one of these vectors is 0, it means if vector A is equal to 0 vector or vector B is equal to 0 vector, then vector A dot vector B is undefined and its value will be 0. तो अगर दोनों वेक्टर्स में से एक भी वेक्टर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वेक्टर A और वेक्टर B का वो 0 आएगा. दोनों में से एक वेक्टर 0 है या दोनों वेक्टर 0 हो तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू 0 आएगी, एंड वी से दैट द डॉट प्रोडक्ट इज अनडिफाइंड इन दिस केस. क्लियर? अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इनके ऊपर, उसको देखते हैं. फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर. ठीक है, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? रियल नंबर होता है. कैसे कह सकते हैं इसको? यहाँ पे वेक्टर A डॉट B जो हमने डिफाइन किया है, इसमें वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A. Magnitude of A is always a real number. Similarly, magnitude of B is also a real number, and cos theta, value of cos theta is also a real number. So product of all these three real numbers will be a real number. It means vector A dot vector B is always a real number. So this is the first result based on this definition. Now, if angle theta is equal to 0 in this definition of dot product, अगर यहाँ पे थीटा 0 होगा, थीटा 0 कब होगा? अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा. if vector A and vector B have the same direction, then clearly the angle between vector A and vector B will be 0, and in this case vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B cos 0, and cos 0 is 1, so we will get magnitude of vector A into magnitude of vector B. तो जब भी एंगल 0 होगा तो वेक्टर्स के बीच में, तो A डॉट B की वैल्यू कितनी आएगी? वेक्टर A डॉट वेक्टर B की magnitude of vector A into magnitude of vector B. And if we take the dot product of vector A with vector A, so clearly vector A and vector A, they are coincident vectors. It means angle between vector A and vector A will be 0. So again in this case we will get magnitude of vector A into magnitude of vector A. It means magnitude of vector A का square. It means किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ अगर हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगी. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इट मीन्स A डॉट A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, वेक्टर B डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर. इस तरीके से वैल्यू मिलेगी. And if theta is equal to pi, it means वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में जो एंगल बन रहा है अगर वो पाई बन रहा है, पाई कब बनेगा? if they have opposite directions. Suppose that direction of vector A is from left to right
and direction of vector B is from right to left. Then in this case, the angle between vector A and vector B will be pi, and so the dot product in this case will be magnitude of vector A into magnitude of vector B cos pi, and cos pi is -1, so we will get minus magnitude of vector A into magnitude of vector B. और अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर A डॉट माइनस ऑफ वेक्टर A, तो क्लियरली वेक्टर A और नेगेटिव ऑफ वेक्टर A के बीच में जो एंगल बनेगा that will be pi. So in this case we will get magnitude of vector A into magnitude of vector minus A, and angle between these two vectors is pi, so cos pi is -1, and clearly magnitude of vector A and magnitude of negative of vector A is always equal. ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इसके प्लेस पे और cos पाई -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर. Now there is one more result. Two vectors, vector A and vector B, are perpendicular to each other if and only if vector A dot vector B is equal to 0. तो दो वेक्टर्स A और B परपेंडिकुलर होते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0. तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे. वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, बाय डेफिनेशन विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा. नाउ इफ वी सपोज दैट वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू 0, अगर वेक्टर A डॉट B को हम 0 सपोज कर लें, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू क्या मिलेगी, 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा. और यहाँ पर हम नॉन ज़ीरो वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स की बात हो रही है. सो इफ़ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स देन देयर मैग्नीट्यूड विल आल्सो बी नॉन ज़ीरो, इनका मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो होगा. और क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, इट मीन्स तो किसकी वैल्यू 0 हो सकती है, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है. दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में है. तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. इट मीन्स तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, पाई बाई 2. कन्वर्सली ऐसे सपोज कर सकते हैं, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज पाई बाई 2. सपोज कर लेते हैं इनके बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 2 है. देन इन दिस केस vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B, and angle is pi by 2, so we will get cos pi by 2, and cos pi by 2 is 0, so the value will be 0. तो अगर एंगल पाई बाई 2 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वेक्टर्स का, इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, पाई बाई 2. नाउ बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट वी कैन राइट वन मोर रिजल्ट. यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. और एंड वी नो दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तो इनके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये भी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. इट मीन्स इनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा. और अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो क्लियरली इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा. आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0 आएगी, जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू 0 आएगी, एंड सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं. तो इन सभी के बीच में क्या है, एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है. और अभी हमने डिस्कस किया अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा. तो एक रिजल्ट तो ये हो गया दैट आई डॉट जे डॉट के एंड आई डॉट के इज इक्वल टू 0.
और दूसरा रिजल्ट इसी में बनेगा हमारा, दैट इज इफ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप विद आई कैप, तो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप, और क्योंकि दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, यहाँ पे क्या मिलेगा 0, एंड दीज आर यूनिट वेक्टर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ठीक है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और cos 0 कितना होता है 1, वैल्यू कितनी आएगी 1, इट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 1. So it means I cap dot I cap is equal to J cap dot J cap is equal to K cap dot K cap is equal to 1. So this is another important result. ये सारे रिजल्ट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं. क्लियर? Now let us discuss how we can find the angle between two vectors. Let we have two vectors, say vector A and vector B. And angle between vector A and vector B is theta. Then by definition of dot product, vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B cos theta, and this implies cos theta is equal to vector A dot vector B upon magnitude of vector A into magnitude of vector B. यहाँ से ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया. अगर हमें वेक्टर A और वेक्टर B की वैल्यू पता है तो हम उनके बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें गिवन हो इफ़ वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 4 से, and magnitude of vector A is 2 and magnitude of vector B is 3. ठीक है, इसको हम ऐसे रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट कर ले रहे हैं प्रोसेस बताने के लिए कैसे हमको इसको यूज़ करना है. तो अगर यहाँ पर हमें वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में एंगल फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू कितना है 4. इसके प्लेस से वैल्यू क्या हो जाएगी 4. डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज गिवन एज 2 and magnitude of vector B is given as 3. So 2 into 3, 4 upon 6, which means 2 by 3. तो एंगल क्या हो जाएगा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 by 3. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एंड another result is that dot product of two vectors is always commutative. दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है. इट मीन्स हम वेक्टर्स को किस ऑर्डर में लिख रहे हैं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इधर वी फाइंड वेक्टर A डॉट B और वी फाइंड वेक्टर B डॉट A, द वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम. ठीक है, सो इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर. Now next is, let we have three vectors, vector A, vector B and vector C. Then in this case vector A dot vector B plus vector C will be equal to vector A dot vector B plus vector A dot vector C. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर एडिशन. ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बाहर लिखा हुआ है, अंदर क्या है एडिशन ऑपरेशन है, और ये डॉट प्रोडक्ट का जो ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द एडिशन यहाँ पे. ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है ये. एंड लास्ट इज सपोज वी हैव अ स्केलर लैम्डा and two vectors vector A and vector B, then
lambda times of vector A dot vector B is equal to lambda times of vector A dot vector B is always equal to vector A dot lambda times of vector B. तो इट मीन्स लैम्डा को हम कहीं भी रख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, चाहे हम वेक्टर ए डॉट बी फाइंड करके लैम्डा मल्टीप्लाई करें या फिर वेक्टर ए में लैम्डा मल्टीप्लाई करके फिर डॉट प्रोडक्ट लें बी के साथ में, वेक्टर बी के साथ में, या फिर लैम्डा को हम वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर जो वेक्टर मिल रहा है उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर ए के साथ में. इन ऑल दीज थ्री केसेस द वैल्यू विल बी सेम. एंड we want to discuss one more thing here, dot product of two vectors in component. तो component form क्या है ये आपको पता है, वेक्टर a इज इक्वल टू इसके कंपोनेंट्स अगर a1 a2 a3 हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, वेक्टर a इज इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k. Here a1 a2 and a3 are scalar components of vector a. Similarly, let vector b is given by b1i b2j plus b3k. Then in this case the dot product is given by, इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे a2j plus a3k and b1i plus b2j plus b3k. तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसके सारे टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट इसके सभी टर्म्स के साथ में होगा, मतलब वेक्टर ए के सभी कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के सभी कंपोनेंट्स के साथ में होगा. तो यहाँ पे a1i कैप डॉट b1i कैप होगा और स्केलर्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट a1 b1 and I cap dot I cap. Similarly, we will get a1 b2 I cap dot j cap. Then we will get a1 b3 I cap dot k cap plus a2 b1 j cap dot I cap plus a2 b2 j cap dot j cap, a2 b3 j cap dot k cap plus a3 b1 k cap dot I cap plus a3 b2 k cap dot j cap and a3 b3 k cap dot k cap. और अभी हमने डिस्कस किया था I cap dot I cap की वैल्यू 1 होगी, J cap dot J cap की वैल्यू 1 होगी और K cap dot K cap की वैल्यू 1 होगी और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. ठीक है, I और J परपेंडिकुलर है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0. I cap dot K cap की वैल्यू 0, J cap dot I cap की वैल्यू भी 0 होगी, J cap dot K cap की वैल्यू भी 0 होगी, K cap dot I cap की वैल्यू 0 होगी और K cap dot J cap की वैल्यू 0 होगी. तो बचेगा हमारे पास क्या, ये 3 टर्म्स बचेंगे यहाँ पे. ठीक है, और ये भी हमको पता है I cap dot I cap 1 होता है, J cap dot J cap भी 1 होता है. ठीक है, और K cap dot K cap की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. तो इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं दो वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म में, तो करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर सम किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, शो दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर हियर वी आर गिवन वेक्टर a एंड वेक्टर b एंड वी हैव टू शो दैट वेक्टर a प्लस b एंड वेक्टर a माइनस b आर परपेंडिकुलर. तो पहले हम सम फाइंड कर लेंगे. वेक्टर a प्लस बी यहाँ पे क्या आएगा, 5i प्लस i 6i माइनस j प्लस 3j प्लस 2j एंड माइनस 3k माइनस 5k मीन्स माइनस 8k. एंड वेक्टर a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस i 1 4i माइनस j माइनस 3j माइनस 4j एंड माइनस 3k माइनस 5k मीन्स 2k.
ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 8 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 4 24, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 एंड माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, सो द वैल्यू इज 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 आ रहा है, इट मीन्स वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। प्रूव्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हमको गिवन है, इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, इट इज़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सपोज फर्स्ट वी विल फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ये क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस यहाँ भी स्केलर कंपोनेंट 1 है और यहाँ क्या है -1 है, तो 1 इंटू -1 प्लस यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या है 1, तो -1 इंटू 1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -1 इट मीन्स -1 वैल्यू आ जाएगी। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के ए कितना है यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी अगर हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। आई कैप जे कैप और के कैप के साथ में जो यहाँ पे स्केलर्स है, ठीक है, जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उन्हीं का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट लेते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, तो वैल्यू इस केस में भी क्या मिलेगी हमको स्क्वायर रूट 3। अब अगर इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी इज -1, डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ऑल्सो √3, so the final value is -1/3. So the value of theta is cos inverse of -1/3. ठीक है, this will be the angle between vector A and vector B. Now note down the questions for homework. Solve these 3 questions. Thank you very much.